A very warm good afternoon to one and all. It's indeed an honor for me to stand here and welcome you to this wonderful auditorium, and perhaps it's going to be a very memorable and engaging discussion that we are going to have here this afternoon. I assure you that every minute have very fond memories, and you are going to go back home with a lot of knowledge, a lot of information, a lot of input that will be beneficial to you for entire lifetime. So with assurance, to begin with, let me first of all welcome you all. सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा सभी पेरेंट्स का, अभिभावकों का, जिन्होंने समय निकालकर इस आफ्टरनून में हमारे आमंत्रण को स्वीकारा और यहाँ आए हैं। तत्पश्चात मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सारे पैनलिस्ट का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय यहाँ देकर इस परिचर्चा में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर हमें अनुग्रहित किया है। थैंक यू सर। इसके पश्चात मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रेरणा स्रोत श्री सेनानी सर का, जिनके निरंतर गाइडेंस और मोटिवेशन के कारण ही हम सब ऐसे आयोजन करने में सफल हो पाते हैं। आज की जो चर्चा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। मैं बहुत ज्यादा उसमें बोलना अभी नहीं चाहूंगा, बट जनरली whenever we think about child education, we being as a parent, most of the times whenever I have talked to people, they blankly tell me that they have learned parenting only from people that they have been with or through their own experiences. कैसा बच्चों को ट्रीट करना चाहिए, what all needs from our part as a parent, कितना प्रेशर डालना है, कितना मोटिवेट करना है, कितना समझाना है, कितना संभालना है, कैसे बड़ा करना है इनको, क्योंकि we all know, we all want कि हमारे बच्चे अच्छे बने, तरक्की करें, उनका एक संपूर्ण विकास हो, एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग के रूप में सामने आए। बट ऐसा होता नहीं है जनरली। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी फील समथिंग हैज गॉन रॉन्ग समवेयर, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई, पता ही नहीं चलता है। वो शायद इसलिए पता नहीं चलता है क्योंकि शायद हमें जानकारी ही नहीं रहती है एज अ पेरेंट what all we need to do, हमें क्या करना है, कैसे बड़ा करना है, कैसी शिक्षा होनी चाहिए। If we talk about schools, schools also do not know much. I mean, let me be very honest about it. Focus is on numbers. Focus is on, I mean, just giving education. I don't know what kind of education is it. So this afternoon we will try to come out of this web of confusion. This afternoon, we will try to find answers to these questions. And this afternoon, we'll discuss these so very important, so very important issues that are part of everyone's life, and yet they remain ignored for a lifetime. So without wasting any time, we are already late, I guess. We should have started a bit earlier. I would request our panelists to please come onto the stage. Our panelists for the afternoon are Mr. L. Matthews, Ms. Swati Shori, Dr. V.K. Gandhi, Shri Sunil Senani, Mr. Ron, please sir. In the meanwhile, let me give a brief on 2 decades. Then we have Ms. Swati, who has studied in some wonderful places and has been an alumnus of Leeds University, Cambridge University. We have Dr. V.K. Gandhi, who is child specialist and who is one of the finest doctors in Satna.
हमारे चेयरमैन सर, आई डोंट नो कितने लोग जानते हैं कि उन्होंने खुद अपनी इंजीनियरिंग बिट्स पिलानी से की है, खुद ये ब्रिलियंट एकेडमिशियन रहे हैं। एमपी बोर्ड में उन्हें उस समय टॉप किया था जब एमपी और छत्तीसगढ़ एक हुआ करते थे। सो वी विल हैव अ लॉट ऑफ इनपुट्स फ्रॉम हिम आल्सो। देन वी हैव मिस्टर रॉन हु इज फ्रॉम यूएस। He brings to us global perspective on education, on parenting. He has been in India since 2012, I guess, and he has adopted India as his country. He has been contributing here to the welfare of students and education. So I welcome you too, sir. With this introduction, I would request Honorable Chairman sir to please lead the discussion from here on. Thank you, sir. Good afternoon, everybody. नहीं, चालू नहीं है। हाँ, can you hear me? Everybody at the back, सुनाई दे रहा है अच्छे से? चलिए, good afternoon, everybody. Dr. Anand Jyoti has already introduced the panelists on the stage who are sitting in front of you. आज का टॉपिक तो मुझे लगता है आप सबको कार्ड के माध्यम से पता ही चल गया होगा, फिर भी मैं ब्रीफली उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करने का प्रयास करूंगा। द टॉपिक फॉर पैनल डिस्कशन टुडे इज स्कूल एजुकेशन टुडे, प्रेशराइजिंग और एम्पावरिंग चिल्ड्रन। स्कूल एजुकेशन का जो पर्पज है वो तो बच्चों को एक साहसी बनाना है, क्रिएटिविटी में इंक्रीज करना है, उनको नॉलेज देना है। लेकिन क्या स्कूल ये कर रहा है आज की तारीख में, या स्कूल इज पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द किड्स ड्यूरिंग देयर एंटायर स्कूल डेज? ऐसा हो रहा है क्या? और द वे पेरेंट्स एंड स्कूल्स नीड टू चेंज। आज के समय में, कंटेम्पररी टाइम में, कहाँ पेरेंट्स को चेंज होने की जरूरत है, कहाँ स्कूल को चेंज होने की जरूरत है। प्रेशराइजिंग तो मुझे लगता है अपन रोज बात करते हैं कि कितना प्रेशराइजिंग एटमॉस्फेयर। अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था कि कोटा में इस साल की 30th सुसाइड हुई है, 30 बच्चों ने वहाँ पर सुसाइड की है, क्योंकि हम सब समाज में उनको भेज देते हैं आईआईटी में एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और वहाँ लाखों बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं और सबको पता रहता है कि इसमें से कुछ 5-10 हज़ार का सिलेक्शन होना है, और 18 घंटे वहाँ उनसे मेहनत कराई जाती है। कुछ बच्चे को लगता है, एहसास होता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, बट बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द मे बी सोसाइटी, फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम आई डोंट नो व्हाट ऑल सोर्सेज, वो बेचारे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और उस रैट रेस में वहाँ पड़े रहते हैं। न सिर्फ कोटा में, मुझे लगता है ये सब जगह विजिबल है। आजकल मेरी जितने पेरेंट्स से बात होती है, बच्चों से बात होती है, जितने चिंतित बच्चे हैं उतने ही चिंतित उनके पेरेंट्स भी हैं। सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है, फेसबुक में बैठा रहता है, क्या इसके करियर का हो गया, भविष्य में क्या करेगा। तो दे आर आल्सो प्रेशराइज्ड, एंड इन टर्न जब पेरेंट्स प्रेशराइज होते हैं तो दे प्रेशराइज है चिल्ड्रन। अच्छा पढ़ाई करो, नहीं तो तुम कैसे आगे चल के अपने को स्थापित कर पाओगे। So there is too much pressure. I think there are no two opinions about it. Everybody agrees that there is too much pressure. बातें लेकिन हम लोग करते हैं कि नहीं, हमको प्रेशर नहीं देना है, हमें बच्चों को ऐसा एटमॉस्फेयर देना है so that you know they feel powerful. जैसे जब छोटा बच्चा 2 साल का होता है, उस समय उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी होती है, सबसे ज्यादा नेचुरली वो दुनिया को जानने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, rather than developing these skills of learning, courage, creativity, हम प्रेशर के कारण उसको बांधते चले जाते हैं। This is a very very relevant topic which is important for all of us. उसके आगे अगर ये समस्या है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, हम स्कूल कैसे होने चाहिए, किस प्रकार का एटमॉस्फेयर स्कूल के अंदर होना चाहिए, किस तरीके की डिलीवरी होनी चाहिए, बच्चों को क्लास के अंदर और क्लास के बाहर स्कूल के अंदर क्या स्कूल ट्रीटमेंट दे जिससे वो नेचुरल वे में ग्रो करे, सीखे और इस प्रेशर को महसूस ना करे। दूसरी बात, पेरेंटिंग भी एक बहुत बड़ा एक ग्रे एरिया है। बहुत सारे पेरेंट्स, इनफैक्ट सारे पेरेंट्स, वी आर नॉट डाउटिंग द इंटेंशन ऑफ द पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चे बहुत शानदार बने
और दुनिया के सबसे अच्छे नागरिक बने, मगर उनको ये पता नहीं है कि उसके लिए उनको करना क्या चाहिए। प्री प्राइमरी में बच्चे को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, प्राइमरी में क्या देना चाहिए, जैसे ही वो टीन्स में एंटर करता है तब उसको हमको कैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट नो दैट। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों को शायद याद होगा, मैंने एक एक्सपर्ट को बुलाया था दिल्ली से, उसने एक परवरिश स्कूल ऑफ पेरेंटिंग खोला है। उसने तो सारे पेरेंट्स जो उस वर्कशॉप में आए थे सबको ये एहसास कराया कि आप चाहते तो बहुत अच्छा हो, आप बच्चे को बनाना चाहते हो जेड, और सारे आप वो काम कर रहे हो जिससे बच्चा ए बन रहा है। इतना बड़ा फर्क है। आपकी मंशा तो उसको जेड बनाने की है, लेकिन आपके सारे क्रियाकलाप हैं वो उसको ए बनाने की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। इतना कंफ्यूजन है पेरेंट्स के माइंड में, हाउ दे आर सपोज टू रियली ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन एंड हाउ स्कूल्स एंड पेरेंट्स बोथ कैन अलाइन देमसेल्व्स। दोनों की अगर एक सोच हो कि बच्चे को अगर वही फिलॉसफी, वही ट्रीटमेंट स्कूल में मिलेगा और वही घर में मिलेगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बच्चे का विकास बहुत अच्छा है। इन विषयों पे ये सारे विशेषज्ञ यहाँ चर्चा करेंगे, अपने अपने व्यूज देंगे। आप में से भी जिसके मन में जिस प्रकार का कोई क्वेश्चन होगा वो आप रेज कर सकते हैं, माइक आपके पास आएगा और जिस पैनलिस्ट से पूछना चाहेंगे वो पैनलिस्ट आपके सवालों का जवाब देंगे। मुझे लगता है सबसे शुरू करने के पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि सारे पैनलिस्ट शुरू में अपने ओपनिंग 2-3-4 मिनट के रिमार्क इस टॉपिक पे दें, और एक बार उन्होंने जब अपनी बात कह ली है इसके बाद फिर हम सब इनसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हैं और आपके यहाँ पे नहीं तो मैं पूछ लूंगा। जिस फील्ड में ये लोग एक्सपर्ट हैं हम इनके क्वेश्चन जानने, इनके व्यूज जानने का प्रयास करेंगे, या लिख के भी पूछ सकते हैं। So I think we can start with Mr. Matthews। जैसा कि डॉक्टर आनंद ने बताया, आप क्राइस्ट चर्च कॉलेज आपने सुना होगा, जबलपुर का बहुत पुराना और बहुत प्रतिष्ठित स्कूल है। महाकौशल का इनफैक्ट इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्कूल। उसमें 35 साल की उम्र में, 37 साल की उम्र में ये प्रिंसिपल बन गए थे। बॉम्बे में इनकी पढ़ाई लिखाई हुई और बड़ा जबलपुर में इनका नाम है। जब मैं जबलपुर कभी भी जाता हूँ तो किसी से भी पूछता हूँ तो मैथ्यू सर को लेके लोग बड़ी इज्जत से याद करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे कॉलेज में काम भी करते हैं। So he has been in this field for such a long period. Let us hear what are his views on this topic. I'll prefer the mic. As a teacher, खड़े रहने की आदत रही है और बेटर व्यूज एक्सप्रेस हो जाते हैं। Honorable Chairman Sir, the elite members on the dais, dear parents, ये बड़ी इत्तेफाक की बात है कि विट्स 14वें साल में है और 14 साल ही एक स्कूली जीवन, बालक बच्चे का स्कूली जीवन बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ 14 साल कि पहली से 12वीं तक और KG1 और KG2, और इस 14 साल में ये बच्चे स्कूल में यानी टीचर और हमारे बीच में ज़्यादा रहते हैं, आपके पास कम समय रहते हैं क्योंकि बाकी समय थोड़ा जो रहता है बच्चा सोएगा, स्कूली जीवन उसका, और जो रियल जो टाइम है वो हमारे संग, और जो वैल्यूबल टाइम है हमारे संग बीतता है। इसलिए आवश्यक है कि इस 14 साल की जो जर्नी है बड़ी महत्वपूर्ण है शुरुआत से। अब स्कूल तो बहुत से हैं, परंतु हमने ये सोचा कि आपके नज़रिए से, क्योंकि एज ए पेरेंट आपका एक्सपेक्टेशन बहुत ऊंचा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है और वो सही भी है अपनी जगह, परंतु थोड़ा जो टकरार बोले या जो भी अंडरस्टैंडिंग बोले वहाँ फर्क पड़ जाता है कि वही एक्सपेक्टेशन जो आपके हमारे प्रति, स्कूल के प्रति होता है, वही एक्सपेक्टेशन आपके बच्चे के प्रति रहता है, जो कि कितना सही कितना गलत वो चर्चा का विषय है। दूसरी चीज, स्कूल, आप